Right quadrant pens. नहीं होगा। अच्छा, बस छोड़ें। These are basically four quadrants. If we divide this, the right upper, left upper quadrants, left lower, and right lower quadrants. Right upper, uh, left upper, left lower, right lower quadrants, and it is a nine quadrant further divided. Nine is right hypochondrial first, epigastric regions, left hypochondrians, lumbar regions, left and rights, and the parambilical regions, and this is the right iliac fossa, left iliac fossa, and it is the this is the hypogastric regions. So it is a simple classification. Second one important thing is that in which quadrant which organ is actually underlying this quadrants. If we see, if we look out at the right upper quadrants, then underlying this is liver, gallbladders, duodenum, head of pancreas, right adrenal glands, and upper lobe of right kidney, hepatic flexures of colon, and sections of ascending colon and transverse colon is also present on this right quadrants. So definitely today our topic is right upper quadrant pen. Then I'm only focusing on this organs. तो कोई भी एज सच कोई भी अगर इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज होंगी, फॉर एग्जांपल कोई पैथोलॉजी होगी इन्वॉल्व, तो बेसिकली राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ पेशेंट जो है प्रेजेंट करेंगे. Abdominal pain causes diffuse pain को causes हैं different मोस्टली. एंड राइट अपर क्वाड्रेंट के अगर हम ऑर्गेनिक कॉजेज का देखें, तो ऑर्गेनिक कॉजेज के अंदर एक्यूट कोल्सिस्टाइटिस, बर्ड कैरी, एंड बेसल निमोनिया. And the right upper quadrant is also include cholecystitis, gastritis, GERD, maybe mostly the hepatic abscess, acute hepatitis, septum gallus, perforated ulcer, duodenal, or there is retrocecal appendicitis, and right lower lung pneumonia, and maybe the appendicitis in pregnancy and myocardial infarctions. एक्चुअली जब अगर हम ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन्स के अंदर लोकेटेड हैं, तो ये सेम जो अभी हमने ऑर्गन्स पढ़े हैं, ये मोस्टली उनकी पैथोफिजियोलॉजीज हैं, अगर मींस अंडरलाइंग कॉजेज हैं उनके, जो पेशेंट जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. Abdominal pain causes there is the inflammation of the viscus, perforation of the viscus, obstructions, infarctions, or intra-abdominal hemorrhage, retroperitoneal hemorrhage, extra-abdominal and medical causes of acute abdomen, and pneumonia and inferior wall MI. Then we take the history. History is Sukrat, site, onset, character, radiations, association, associated factors, and timing and exacerbation or severe. With the same history from third year to onward, we are continuously teaching in classes. S stand for site, O for onset, character, radiations. I think there's no any further discussion on this. Abdominal pain, somatic pain, maybe the visceral pain, and somatic pain actually they originate from abdominal wall, and parietal peritoneum sharper and more distinct, better localized and sensitive to cutting, tearing, and burning and crushing. And visceral pain is actually visceral pain, tearing, burning, and crushing. And visceral pain is originate from the internal organs and visceral peritoneum, and itchy and crampy variable locations, not sensitive to cuttings and sensitive to stretching hollow organs and capsules of the organs. एक्चुअली नक्शल ये है कि सोमैटिक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोकलाइज कर सकते हैं आप किसी भी अगर एरिया के ऊपर अगर वो पेन हो रहा है तो सोमैटिक पेन से, लेकिन विसरल पेन को आप लोकलाइज नहीं होते, ये मोस्टली डिफ्यूज होते हैं. सिंगल पॉइंट, सिंगल फिंगर पॉइंट पेशेंट नहीं कर सकता कि मेरे को डॉक्टर साहब इस जगह पर पेन हो रहा है. ये बेसिकली जो है वो डिफ्यूज एक पेन होता है, और मोस्टली अपनी थंब यूज़ करता है पेशेंट के उसको पेन के लिए. फॉर एग्जाम्पल हैंड अपना रखेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पेन हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो
ये एक्चुअली जो पेन है ये जो है वो विसरल पेन क्या होता है, जो सोमैटिक पेन्स होते हैं मोस्टली पेशेंट जो है फिंगर से पॉइंट आउट हो रहा था डॉक्टर साहब इसके बाद पेन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा शार्पली लोकलाइज्ड पेन होते हैं सोमैटिक पेन्स. Second one is abdominal pain, shifting pain. Shifting pain is paramplacal pain shifting to right low quadrants in acute appendicitis and radiations and referred pain. Abdominal pain gradings we can use the grading. Actually different types की gradings use होती हैं. तो most common जो है अगर आप फेस स्केल से देखें तो फेस स्केल से आप जो है वो कर सकते हैं कि 0 के अंदर नो हर्ट है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल पेन है तो पेशेंट का फेस इस किस्म का है, और वर्स पेन जो पेशेंट को फील हो रहा है और जैसे आप पैल्पेट कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो एक किस्म से वीपिंग शुरू कर रहा है, और तो वो बेसिकली जो है वो ग्रेड 10 के अंदर है पेशेंट्स. ठीक है, तो ग्रेड 8 जो है इंटेंस पेन है, उसके अंदर फीलिंग हो रही है. तो फेस के अंदर ग्रेडिंग्स हैं, डिफरेंट फेस स्केल्स हैं, एंड ये एब्डोमिनल स्केल के लिए हो रहा है. एब्डोमिनल पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन्स, एक्चुअली ये हिस्ट्री टेकिंग है. अगर आप हिस्ट्रीज के अंदर देखें तो इसके अंदर आप बता सकते हैं ये केस सिनेरियो है. ठीक है, a 40-year-old moderately obese female present in emergency department, 1 day history of the constant epigastric and right upper quadrant pains. She describes severity of the pain as 7 out of 10. ठीक है, 7 out of 10, तो means कि intense pain है still. ठीक है, pain begins after eating fried pork. Patient pain is also seems to affect the right of her back near the scapula. She feels nauseous and vomiting twice. She had similar pains and less severity once in a month in the past year. The pain comes from after eating fried spicy foods, and previously it has resolved after an hour. She is diabetes 6 and para 6. Diabetes 6 and para 6. So, what is your differential diagnosis in this scenario? Tell me the differential diagnosis. Cholecystitis, Dr. Fatma. Okay. Anyone else? Peptic ulcer, acute gastritis. Okay. एक्चुअली पेशेंट अगर देखा जाए तो सिंपल 1 डे हिस्ट्री और स्पाइसी फूड के बाद पेशेंट को पेन हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि पेशेंट जो है वो राइट साइड ऑफ हर बैक एंड स्केपुला पे भी फील पेन कर रहा है, और प्रोलॉन्ग हिस्ट्री की ये पेशेंट को ऑन एंड ऑफ रहता है once months और past years से जो पेशेंट को पेन फील हो रहा है. तो लेट्स सी ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन सेम पेशेंट का हम कर रहे हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन टेम्परेचर इज 100 डिग्री Fahrenheit, heart rate is 110, her blood pressure is 120/80. I marked tenderness on right upper quadrants on palpation. When right upper quadrant palpate while she is taking deep breath, she abruptly sees the inspiration secondary to pain, but this sign is positive. Okay, and WBC count 14 to 10 raised power 3. Thank you. Total bilirubin is 1, alkaline phosphatase is 70 units per liter, and amylase is normal. Means patient also we rule out the pancreatitis. There is a lipase is also limit normal. Now, what is your differential? Good, Dr. Fatma, good. And cholecystitis. ये डेफिनेटली अभी cholecystitis पेशेंट को जो है वो टॉप पर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें अभी आपको पेन फील हो रहा है, तो पेन बेसिकली जो है वो पेशेंट्स को पेन जो है पेशेंट्स टेम्परेचर है, मर्फीज पॉजिटिव है, राइट अपर क्वाड्रेंट मार्क टेंडरनेस एंड cholecystitis. Murphy sign is indicate the cholecystitis. Definitely. So right upper quadrant pain differential diagnosis क्या हो सकती है हमारी differential diagnosis symptoms अगर देखें right upper quadrant pain radiated around the right back after fatty meals and dissolves after a few hours, and female multigravida obese patients. Acute cholangitis है, persistent right upper quadrant pain, fever, jaundice patient को चार्कट फ्राइड्स के अंदर पेशेंट आ सकता है. ठीक है, इसके अलावा acute cholecystitis
acute cholecystitis persistent greater than 4 और 10 to rare और right upper quadrant pain and fever Murphy's positive. ठीक है, तो डेफिनेटली हम जो है ये 4 और से ज़्यादा पेन रह रहा है और सीवियर है, राइट अपर क्वाड्रेंट है, फीवर के साथ भी मर्फीज साइन भी पॉजिटिव आ गया था एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर। लेकिन अगर यही पेन जो है वो जॉइंटिस के साथ होता मींस टोटल बिलिरुबिन अभी हमने देखा कि नॉर्मल है, तो फीवर भी पेशेंट को आ रहा है और राइट अपर क्वाड्रेंट भी है, तो ये चार्कोट्राइटिस हो जाता है, ये एक्यूट कोलिंजाइटिस टॉप पर आ जाता है। पेनकिटाइटिस में पेन होता है, रेडिएट करता है स्ट्रेट थ्रू द बैक और पॉलीलिथियासिस इंड्यूस भी हो सकता है और मे बी अल्कोहल इंड्यूस की वजह से भी हो सकता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस में आपको फीवर की हिस्ट्री नहीं मिलेगी, सिंपल पेन होगा, एनसिड्स यूज और स्टेरॉइड्स यूज होंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर भी आपको बर्निंग, प्रीवियसली मैलिग्नेंट अल्सर्स के अंदर क्रॉनिक पेन्स मिलेगा और इस तरह ये डिफरेंट एमआई के अंदर डेफिनेटली कार्डियक इश्यूज आपको मिलेंगे, हेपेटाइटिस के अंदर एलर्जीज के इश्यूज मिलेंगे और हेपेटिक एब्सिस से अगर लिवर एब्सिस चेक करें तो भी पेशेंट को जो है बैक्टीरियल और मीबिक हेप्टोमेगाली से एग्जामिनेशन में लिवर इनलार्ज मोस्टली मिलता है और टेंडरनेस भी काफी होती है पेशेंट्स को और इसमें भी जो है एलर्जीज रीअरेंज हो सकते हैं। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जो है बेसिकली लंबर पेन्स मोस्टली मिलते हैं, मे बी राइट अपर राइट साइड जो है वो मिल सकता है, लेकिन डिस्यूरिया, हेमेचूरिया और यूरिनरी सिम्पटम्स मिलेंगे। तो ये सारे हमने जो है एक डिफरेंशियल थे। इसके बाद जो है हमारे पास एब्डोमिनल पेन, abdominal pain, right upper quadrants, with her current history of severe persistent pain following ingestion of the fatty food, nausea and vomiting associated with right upper quadrant tenderness on palpation. The patient etiology is most likely will be in origin. The patient's prior history are consistent with symptomatic polylithiasis, positive Murphy's, patient with normal total bilirubin and alkaline, and similarly normal amylase and lipase is ruled out the gallstone pancreatitis. ठीक है, तो कोलिसिस्टाइटिस जो आपने बेसिकली बनाया था बिल्कुल ठीक था। ये हिस्ट्री में जो फेवर कर रही थी, दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन टेस्ट, मल्टीपल फीमेल्स की फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर मर्फीज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस था। पेशेंट को डायग्नोसिस के अंदर जो गॉलस्टोन्स अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप कर सकते हैं, हिडा स्कैन करवा सकते हैं और एक्सरे केयूबी जो है may not be helpful 10% gallstone को pick करने के sensitivity है patients. So cholecystitis manifestations of gallstones patients different gallstones की manifestations हैं जो patient इसी तरह पर cholecystitis के साथ present करेंगे। acute cholecystitis भी होगा जो अभी आपने देखा है, patient को Murphy's positive आ जाएगा और second जो है cholelithiasis है, इसमें obstruction of common bile duct हो जाता है, मींस स्टोन सीबीडी के अंदर है, तो ये इसमें कोलिंजाइटिस हो जाता है पेशेंट्स को। ठीक है, अगर उसके अंदर फीवर भी पेशेंट को आएगा तो कोलिंजाइटिस कहलाएंगे ये। सेकंड जो है एक्यूट गॉलस्टोन पेनकिटाइटिस के अंदर किस तरह होता है कि बेसिकली स्टोन्स की वजह से जो है पेनकिटाइटिस होगा और गॉलस्टोन इलियस मींस लार्ज स्टोन्स की वजह से इंपैक्ट होने की वजह से फिस्टुला फॉर्मेशंस होती है और इलियोसिकल वेल्व्स के ऊपर कभी टेपर्ड हो जाते हैं या गॉलस्टोन की वजह से इलियस हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट चले जाते हैं लार्ज स्टोन्स की वजह से। इर्सी सिंड्रोम भी गॉलस्टोन की वजह से ही होते हैं। ये सिस्टिक डक्ट के ऊपर इंपैक्ट इसका होता है और बाइल डक्ट को या कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर देते हैं। ये एक्चुअली कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन नहीं जाता, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, लेकिन वो अपने प्रेशर की वजह से कॉमन बाइल डक्ट को प्रेस कर देता है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम प्रोसीड करें फर्दर। ठीक है, तो ये सारी मैनिफेस्टेशन है कोलिसिस्टाइटिस की। मींस के कोलिसिस्टाइटिस के अलावा भी जो गॉलस्टोन्स अपनी मैनिफेस्टेशंस दे सकते हैं। कोलिलिथियासिस जो एक्चुअली है मींस वो सिस्टाइटिस लोकल इन्फ्लेमेशन भी वो गॉलस्टोन करवा सकता है अगर आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है, और वो सीबीडी स्टोन्स भी ऑब्स्ट्रक्ट करवा सकता है और उसकी वजह से पेन होगा। और अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो कोलिंजाइटिस के साथ भी पेशेंट हो सकता है, मींस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है और पेनकिटाइटिस भी वो करवा सकता है, तो वही गॉलस्टोन्स, तो उसको एक्यूट गॉलस्टोन पेनकिटाइटिस कहते हैं। गॉलस्टोन की वजह से इलियस भी हो सकता है और मिजी सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये सारी मैनिफेस्टेशन है। अगर किसी भी पेशेंट का गॉलस्टोन ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड के ऊपर है और वो राइट अपर क्वाड्रेंट के साथ पेन के साथ आया तो उसकी डिफरेंशियल आपके पास ये होंगी। ठीक है, मींस ये डिफरेंशियल अगर आप डायग्नोज केस से कर लीजिए। सो व्हाट द हिस्ट्री ऑफ
ओके गुड। मल्टीपैरिटी एक्चुअली मोस्टली पेशेंट्स मल्टीपैरिटी के अंदर जो है वो पेशेंट्स मोस्टली गॉलस्टोन्स के साथ होते हैं। जिस तरह नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज बढ़ती हैं गॉलस्टोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अंडरलाइंग इटियोलॉजीज क्या है आई डोंट नो, स्टिल जो है इसका कोई इडियोपैथिक right upper quadrant pain, cholecystitis. So, cholecystitis is history. Right upper quadrant pain usually resolved within minutes, 3 to 4 hours, and acute cholecystitis and symptomatic polylithiasis. So, इस इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि सिंपल एक गॉलस्टोन है पेशेंट को, और ये पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुई भी है गॉल ब्लैडर्स की। ये पेशेंट को इन्फ्लेम्ड है गॉल ब्लैडर। तो जब इन्फ्लेम्ड पेशेंट को होगा तो उसमें पेशेंट को फीवर भी होगा, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग के अलावा जो है फीवर, टेकिकार्डिया, मर्फीज का पॉजिटिव आना, डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए होना, और गॉल ब्लैडर की थिकनेस अल्ट्रासाउंड पे बढ़ जाएगी, और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड्स का आना, ठीक है, और 4 mm से ज़्यादा थिकनेस होगी। तो ये बेसिकली आपको इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है। तो इसमें आपको एंटीबायोटिक्स का अच्छा इसके अंदर रोल है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। लेकिन अगर सिंपल गॉलस्टोन्स हैं, और गॉलस्टोन जो है वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन करवा सकते हैं, लेकिन ये 3 to 4 आवर के अंदर 3 आवर के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, और माइल्ड टेंडरनेस होती है। इसमें फीवर, डब्ल्यूबीसीज वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। तो इसमें सिंपल पेन किलर्स जो है वही इफेक्टिव होते हैं, अदरवाइज कोलिसिस्टेमी करवानी पड़ती है। कोलिसिस्टाइटिस मैनेजमेंट अगर देखें तो एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन कोलिसिस्टेमी से नॉट इंडिकेटेड। एसिम्प्टोमेटिक्स में सिम्प्टोमेटिक्स के अंदर कोलिसिस के अंदर जो है लेफ्ट कोली करवाते हैं। कोलिसिस्टाइटिस से पेशेंट को तो 48 आवर के अंदर अर्जेंट कोलिसिस्टेमी भी होती है, और बेसिकली आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स को, और एम्फाइजेमेटिस के अंदर भी कोलिसिस्टेमी की जाती है। इस तरह पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर जो है फर्स्ट वीक आफ्टर कोलिसिस्टेमी, abdominal pain, distension, anorexia considered myeloma, cystic post-operative simple care आपके लिए इतना necessary नहीं है आई थिंक। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एडिशनल रिस्क फैक्टर हैं गॉलस्टोन फॉर्मेशंस के, और ये गॉलस्टोन से आफ्टर सेक्शंस डिफरेंट कलर्स के गॉलस्टोन्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग इथियोलॉजीज क्या हैं। ब्लैक स्टोन्स जो हैं वो हेमोलाइटिक एनीमियाज को इंडिकेट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन मोस्टली येलो कलर के होते हैं, ये आपको जो नजर आ रही हैं ब्लैक जो हेमोलाइटिक एनीमियाज में। ब्राउन कलर स्टोन्स भी होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, ये फिर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन सेकंड हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आप देखें और इसकी मेरे को डिफरेंस बताएं। एक्यूट कोलंजाइटिस, what is the differential diagnosis on basis of history and physical examination? Patient female, 24 hour history of epigastric right upper quadrant pain, nausea, vomiting. Greasy foods, patient especially जो है वो feel कर रही है, और patient जो है becomes slightly confused. Physical examination 102, temperature 110 beat, and patient's also hypotensive. Patient tender right upper quadrant on deep palpation, means there is a no Murphy sign positive. She is a moderately tender right upper quadrant pain. Okay, slight sclerolicus, dark color urine. So what's your further other finding is negative. Biliary stenosis stasis. I think it's not a good idea. Biliary stenosis can be caused by cholangitis, maybe. और सिर्फ अभी तक 2 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिया आउट ऑफ 25।
27 सॉरी। कोई और स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है इसके डिफरेंशियल बताने के लिए? एक्यूट हेपेटाइटिस, सो एक्यूट हेपेटाइटिस हम इस वजह से नहीं कह सकते पेशेंट को कि पेशेंट जो है बेसिकली चलें ठीक है, आप लोग अपने डिफरेंशियल बताएं फिर मैं बताता हूँ। और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है सिनेरियो पे, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस सिनेरियो में। वन मिनट और है, जल्दी रिप्लाई करें। ओके गुड, फोर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से सब सो रहे हैं लेक्चर के दौरान। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ओके गुड। तो मेरा ख्याल है कि रिप्लाई के ऊपर आप लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए ना, जो लोग रिप्लाई करें उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन इन सीबीडी, ओके एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बोले ना, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। Polyethiosis and liver abscess. Okay. Let's proceed. Now, right upper quadrant lab values, WBC 15 into 10 raised to power 3, total bilirubin 4. Now, patient the jaundice actually on history we also observe this. Alkaline phosphatase 350. It's much higher. AST is 300, ALT 280, and gamma GCT is also raised, and amylase 100. It's not the 3-time raised. Okay, urine is positive for bilirubin. So now what's your differential? I think I proceed already. You are giving me differential diagnosis. So acute calculus cholecystitis means CBD के वजह से obstruction है cystic duct level के ऊपर, या कोलिटोकोलिथियासिस है CBD के अंदर obstruction है, या फिर जो है गलस्टोन पैनक्रेटाइटिस है, कोलिंजाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, मिर्सीज है। मिर्सीज मींस कंप्रेशन है कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर, पायोजेनिक एब्सिस है एंड अमीबी लिवर एब्सिस है। तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्चुअली अगर इस पेशेंट को हम देखें तो मोस्ट लाइकली पेशेंट विद 1 day history of the upper quadrant works with greasy food, nausea, jaundice, fever in acute cholangitis, gallstone infection is such are tried। पेशेंट्स ल्यूकोसाइटोसिस के साथ है, हाइपोटेंसिव भी था, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी है और एलिवेटेड बिलिरुबिन एंड रीअरेंज एलएफटीज भी है। तो पेशेंट बेसिकली जो है कोलिंजाइटिस इट इज द रेनॉल्ड पेंटार्ड मींस ये 5 अगर ये 3 चीजें होती, पेशेंट हाइपोटेंसिव नहीं होता, अल्टर्ड मेंटेशंस नहीं होता, तो हम इसको चार्कोट ट्राइड कहते हैं, अदरवाइज ये रेनॉल्ड पेंटार्ड कहलाता है। और इसके अंदर पेशेंट बेसिकली पेशेंट जिस तरह अभी हमने देखा है कि हमारा पेशेंट हाइपोटेंसिव और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ भी था, बिलिरुबिन एलिवेटेड है और पेशेंट प्रीवियसली हमने एक क्लू दिया था कि पेशेंट जो है ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा लेता है और अभी जॉइंटिस और राइट क्वाड्रेंट पेन 1 day हिस्ट्री और एलोपैथी वर्स होने की वजह से आया है। तो ये पेशेंट जो है बेसिकली जो है एक्यूट कोलिंजाइटिस के साथ है, ठीक है। और टोक्यो गाइडलाइन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एक्यूट कोलिंजाइटिस सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, फीवर होना, कोलिली चेस्ट होना, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पेशेंट जाना। तो इट इज द असेंडिंग कोलिंजाइटिस। हिस्ट्रीज के अंदर आपने चार्कोट ट्राइड्स में देखा कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर, जॉइंटिस था, रेनॉल्ड पेंटार्ड में हाइपोटेंसिव भी पेशेंट से मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब है, ठीक है। और तो पेशेंट जो है सिंपल चार्कोट में नहीं है, रेनॉल्ड के अंदर है, मींस पेशेंट जो है वो सिक है पेशेंट। तो पेशेंट सर्च में है, एविडेंस ऑफ सर्च के लिए सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम के लिए एक्सरे आप करवाएंगे, हाइपोथर्मिक एंड ल्यूकोपेनियाज हैं, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं बैक्टीरियाज की वजह से सीबीडी के अंदर, और infections हैं और most commonly caused by gallstone obstruction, the distal CVD, other causes of biliary structure cancers and parasites, and suppurative cholangitis, acute cholangitis complicated by septic shock. Ascending cholangitis में WBC आपको elevated मिलेंगे, अल्कलाइन और गामा GCT स्पेशली जो है वो राइज मिलेगा आपको, एंड अल्ट्रासाउंड में CVD डायलेटेड होगी। मैनेजमेंट इसकी क्या होगी कि IV फ्लूइड से ब्लड कल्चर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आईसीयू में एडमिट करेंगे पेशेंट्स को और बिलियरी डिकम्प्रेशन करेंगे ERCP के जरिए, और पीटीसी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस ड्रेन है, ओपन सर्जरीज है, कोलोस्टमीज है।
तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बेसिकली अगर ये देखें, अभी हमने जितने भी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन्स के अंदर देखा है तो स्टोन से, अगर ये स्टोन गाल ब्लैडर के अंदर ये कंप्रेशन कर रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट को, तो ये इसको मिर्जी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और अगर ये सीबीडी के अंदर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन्स हैं और इन्फेक्शन हो जाता है इस कॉमन बाइल डक्ट का, तो इसको असेंडिंग कोलेंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। और अगर गाल ब्लैडर के अंदर ही स्टोन है और इसके अंदर ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि इसमें यूज की जाती है। और अगर यहाँ पर ये गाल स्टोन यहाँ पर इम्पैक्ट कर जाए और इसकी वजह से पेनक्लेटाइटिस पेशेंट को हो जाए, तो इसको गाल स्टोन इंड्यूस पेनक्लेटाइटिस कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? फर्दर अगर देखा जाए तो ये जो चार्कोट्राइड्स हैं, समझ आ रहा है सबको? हेलो। तो चार्कोट्राइड्स के अंदर पेशेंट जो है जॉइंटिस हो रहा है, पेशेंट्स को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है, पेशेंट को फीवर हो रहा है, तो इसको चार्कोट्राइड है। लेकिन अगर यही पेशेंट हाइपोटेंसिव भी हो जाए और मेंटल कंफ्यूजन भी पेशेंट में आ जाए, अल्टर्ड हो जाए राइट अपर क्वाड्रेंट, तो इसको जो है वो नॉट्स फिनोमेना कहते हैं और ये ज्यादा एक सीवियर कंडीशन है एज कंपेयर टू चार्को। असेंडिंग कोलेंजाइटिस के जो फर्दर है, अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है, तो ओके लास्ट स्लाइड जी। तो ईआरसीपी है, कुछ मैंने स्लाइड्स इसमें दी थी। ईआरसीपी के जरिए कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन इस तरह नजर आते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से उसके अंदर भी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन के नीचे नजर आ रहे हैं कुछ, ठीक है। और पीटीबी है, परक्यूटेनियस, ये बेसिकली रेडियोलॉजिकली की जाती है पीटीबी। और ईआरसीपी स्टोन एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। तो ये सिंपल आपको एक ओवरव्यू था। बेसिकली आपको जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर कमांड होनी चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द कोलेसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, चार्कोट्राइड्स, नॉट फिनोमेनास और गॉलस्टोन पेनक्लेटाइटिस को। तो आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये लास्ट स्लाइड जो आपको दिखाई गई इससे पहले, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया तो मेरा ख्याल से कोई इशू होना चाहिए मेरे लेक्चर, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या ये स्लाइड रिपीट